A very wonderful good morning to all of you students. This is Meenu Chugh, your English teacher, and as you all know that just because of corona pandemic we are not able to take our regular classes, so that we have to take online classes. Hope students you all will study well at your home in online classes. So students, as you all know that just day before sometimes we have completed our very first chapter of book Snapshot, and the name of the chapter was The Summer of the Beautiful White Horse. So here we are about to start our very second chapter of the same book. The name of the book is The Snapshot and the name of the chapter is The Address, written by Margot Minko. So let me tell you the characters of the chapter. First of all students, here are basically three characters. The first one is narrator. There is no name of the narrator, only word narrator is being used in all the chapter. Number of the chapter is 2. The name of the chapter is The Address, okay, and the book is Snapshot. Clear? And the writer of the chapter is Margot Minko. You must remember the name of the writer, students. So basically there are three characters in this chapter. The first one is narrator. As I was telling you that there is no name of the narrator, only word narrator is being used in all the chapter. The second one is Mrs. S. Now you will ask that who is Mrs. S ma'am? See, this is the name of the narrator's mother. इसमें आपको कोई अलग से full name नहीं मिलेगा. Only this is the full name. She is narrator's mother. And in last the character is Mrs. Dorling. Dorling, D-O-R-L-I-N-G. These three characters are here in this chapter, beta. Narrator, Mrs. S and Mrs. Dorling. Now you will say who is Mrs. Dorling ma'am? So beta, Mrs. Dorling is the really very good friend of Mrs. S. They both are really very good friends. So this is the time of Second World War. Second World War. In that, now you all know students कि what is being happen in the world wars. होता क्या है world war? Obviously बात है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, बहुत सारा loss होता है, right? So in this case, what the Mrs. Dorling says to Mrs. S that you do one thing, handle me all of your belongings. Belongings means मतलब सामान, उनके पास जो भी सामान था, that give me all your belongings and return it later. That I will return it later. कि मुझे अपना जितना भी सामान है दे दो. The reason is वर्ल्ड वॉर की वजह से तुम्हारा जो सारा सामान है वो सब इधर उधर हो जाएगा, खराब हो जाएगा. तो डू वन थिंग, मुझे ये सारा सामान हैंड ओवर कर दो एंड लेटर आई विल रिटर्न इट टू यू. बट व्हाट हैपन इन द मिडल ऑफ द स्टोरी दैट मिसेस एस डाइज. जो मिसेस एस हैं उनकी डेथ हो जाती है. आफ्टर दैट व्हाट हैपन, शी आस्क्ड हर डॉटर टू टेक ऑल द बिलोंगिंग्स फ्रॉम मिसेस डॉर्लिंग. वो अपनी बेटी से कहती है कि वो जो सारा सामान था तो मिसेस डॉर्लिंग से वापस ले लेना. बट हाउ शी विल टेक इट बैक? बेसिकली यहाँ तो या तो कोई एड्रेस हो या तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो, एंड दैट टाइम द फोन नंबर्स वर नॉट दैट मच अवेलेबल स्टूडेंट्स. तो मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस मिसेस एस ने नरेटर को दिया. नरेटर ने क्या किया? नरेटर उस एड्रेस पे गई. तो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इन द फुल चैप्टर, दैट पर्टिकुलर एड्रेस. सो द एड्रेस वाज बेटा 46 मार्कनी स्ट्रीट. 46 Marconi Street is the address of Mrs. Dorling's house. Now what happened after that? Narrator goes to Mrs. Dorling's house and Mrs. Dorling was not able to recognize her because when she met her she was very small. That's why she was not able to recognize her. She asked her that who you are. Narrator asked Mrs. Dorling about her name, about her residence and all that, and she asked that whether this is 46 Marconi Street or not. The Mrs. Dorling get confused and she denies her that I don't know who you are. But when she asked her name, जब वो उनका नाम पूछती हैं, that time what she replies, yes I am Mrs. Dorling. And then she tells about her mother Mrs. S. So अपनी mother के बारे में बताती है. That time she recognized the cardigan which she was wearing. It was her mother's cardigan. जो cardigan है बेटा, the cardigan, okay, plate means name plate.
उससे वो रिकॉग्नाइज करती है कि ये मिसेस डॉर्लिंग का ही हाउस है, और सेकेंडली मिसेस डॉर्लिंग उनको एग्री कर देती है कि दैट आई एम मिसेस डॉर्लिंग। देन शी आस्क्ड अबाउट द बिलोंगिंग्स दैट हर मदर हैड गिवन टू मिसेस डॉर्लिंग। वो उन सामान के बारे में पूछती है। दिस वॉज द हाफ ऑफ द समरी स्टूडेंट्स। रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल रीड थ्रू आउट द while reading the chapter thoroughly. So let's start the chapter, the address. Basically this is the chapter of Holland beta, Germany, and it is an autobiography. Now what is autobiography? जब बेटा हम खुद के अकाउंट के बारे में लिखते हैं, अपने बारे में लिखते हैं, that is called autobiography. Okay, and जो डॉटर है, जो नरेटर है, वो मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती है अपने मदर के कुछ बिलोंगिंग्स लेने के लिए. लेट्स स्टार्ट इट. दिस शॉर्ट स्टोरी इज अ poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. This short story, ये जो short story है, is the poignant. What is poignant? मतलब टचिंग अकाउंट, मतलब ऐसा अकाउंट जो आपके दिल को छू जाए. टचिंग अकाउंट ऑफ ए डॉटर, एक डॉटर का है. हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स. हु गोज, जो जाती है, इन सर्च ऑफ, ढूंढने के लिए, मदर्स बिलोंगिंग्स, उनके मदर के कुछ सामान को. आफ्टर द वॉर, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इन हॉलैंड में. व्हेन शी फाइंड्स देम, जब वो उन्हें पाती है, मीन्स व्हेन शी इज एबल टू फाइंड दोज बिलोंगिंग्स, द ऑब्जेक्ट्स इवॉक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ. इवॉक मतलब याद दिलाना, EVOK, ई मीन्स किसी भी चीज़ की आपको याद दिलाना. इवॉक मीन्स रिमाइंड अबाउट समथिंग, रिमाइंड अबाउट एनीथिंग, एनी पर्सन और एनीथिंग. ठीक है. When she finds them, जब वो उन्हें फाइंड करती है, मतलब देखती है, ढूंढती है, द ऑब्जेक्ट्स, वो जो चीज़ें हैं, इवॉक मेमोरीज, उसको याद दिलाती है उन यादों की, ऑफ हर अर्लियर लाइफ, उसके पहले की लाइफ की. हाउ एवर मीन्स दस, इस प्रकार. शी डिसाइड्स, वो डिसाइड करती है, टू लीव देम ऑल बिहाइंड एंड रिजॉल्व्स टू मूव ऑन. फिर लास्ट में व्हाट शी डिसाइड, वो डिसाइड करती है कि उन चीज़ों को वो पीछे छोड़ने का डिसाइड करती है. एंड रिजॉल्व मतलब किसी भी चीज़ का संकल्प लेना, दृढ़ निश्चय करना, फाइनल डिसीजन लेना. वो फाइनली डिसाइड करती है टू move on. Let's start the chapter. Here our chapter is about to start. Do you still know me? I asked. Do you still know me means the narrator is asking from Mrs. Darling that do you still know me, कि क्या तुम मुझे सच में जानती हो. The woman looked at me searchingly. The woman means जो मिसेस डॉर्लिंग है, वो नरेटर की तरफ searchingly मतलब फाइंडिंगली मतलब जानने की कोशिश करना, याद करने की कोशिश करना. वो याद करने की कोशिश करती है that do I know that person or not. She had opened the door in a chink. चिंक होता है बेटा बिल्कुल छोटी सी दरार, बहुत पतली सी दरार. She had opened means she opened the door in a chink. उन्होंने बिल्कुल छोटी सी दरार सी थी, इतना ही डोर ओपन किया. I came closer and stood on step means she came closer to the narrator. The narrator came closer to Mrs. Darling. वो उनके थोड़ा सा नज़दीक आ जाती है. Stood on the step और सीढ़ियों पर चढ़कर खड़ी हो जाती है. No, I don't know. मैं नहीं जानती. You, तुम्हें. I am Mrs. S daughter. मैं Mrs. S की डॉटर हूँ. Means the narrator is telling to Mrs. Darling that I am Mrs. S daughter. She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. She held her hand on the door. Means उन्होंने अपना जो hand है वो डोर पर held किया हुआ था. As though she wanted to prevent it opening any further. Means मिसेस एस डिड नॉट वॉन्ट टू ओपन द डोर. जो मिसेस एस है वो डोर को ओपन नहीं करना चाहती थी. दैट्स वाई शी हैड केप्ट हर वन हैंड ऑन द डोर. उन्होंने अपना एक हाथ डोर को रोकने के लिए उस पर रखा हुआ था. हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन. जो उनका फेस है, उनके फेस पर कोई भी साइन नहीं था रिकॉग्नाइजेशन का, कि उन्होंने नरेटर को पहचाना या नहीं पहचाना. उन्होंने बिल्कुल उनके फेस के एक्सप्रेशन से इट वॉज लुकिंग दैट शी डिड नॉट रिकॉग्नाइज द नरेटर. She kept staring at me in silence. Means Mrs. S was no more and Mrs. Darling was a friend of Mrs. S, and now Mrs. Darling was staring at the narrator carelessly. Means she was not even a single percent interested in narrator. वो narrator में बिल्कुल भी interested नहीं थी. She kept staring me इन साइलेंस. वो मुझे साइलेंस में मतलब चुप्पी से घूरती रही, स्ट्रेयर करती रही. परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन मीन्स द नरेटर एडमिटेड दैट शी हैड बीन मिस्टेकन, कि नरेटर से कोई मिस्टेक हो गई है, कोई गलती हो गई है. आई थॉट, मैंने सोचा, परहैप्स इट इज़ंट हर
मीन्स द नरेटर थॉट दैट शी इज ऑन द रॉन्ग हाउस, शी इज ऑन द रॉन्ग एड्रेस। तो नरेटर को लगता है परहैप्स इट इज नॉट हर, कि ये जो घर है ये उनका नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंगली, आई हैड सीन मैंने उन्हें देखा था, ओनली वंस सिर्फ एक बार, फ्लीटिंगली, फ्लीटिंगली मतलब जल्दबाजी में, फ्लीटिंगली मतलब उड़ती हुई नज़र से मैंने उन्हें सिर्फ एक बार देखा था। एंड दैट वॉज ईयर्स एगो, एंड दैट वॉज अबाउट सो मैनी ईयर्स एगो, जो कि बहुत साल पहले की बात है। It was most probable that I had rung the wrong bell, means she was doubted that she has rung the wrong door and rung the wrong bell. उनको ऐसा डाउट लग रहा था कि शायद उन्होंने गलत दरवाजे को नॉक कर दिया है। The woman let go out of the door and stepped to the side. The woman, जो woman थी, let go of the door. उन्होंने क्या किया, वो दरवाज़ा छोड़ दिया and stepped to the side, और एक साइड पर हो गई। She was wearing my mother's green knitted cardigan, means Mrs. Darling was wearing narrator's mother's green knitted cardigan. Knitted होता है बेटा बुना हुआ। जो मिसेस डॉर्लिंग है वो नरेटर की मदर का ग्रीन कलर का कार्डिगन पहने हुए थी। The wooden buttons were rather pale from washing. जो wooden buttons थे वो जो है पेल हो गए थे, हल्के हो गए थे कलर में, पीले पड़ गए थे बार बार वॉशिंग की वजह से। She saw that it was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. Which means Mrs. डॉर्लिंग नोटिस दैट नरेटर वॉज नोटिसिंग हर कार्डिगन। मिसेस डॉर्लिंग ने नोटिस किया, जो नरेटर है वो उनका कार्डिगन को नोटिस कर रही है। एंड अगेन शी गो बैक बिहाइंड द डोर, फिर से वो दरवाजे के पीछे चली गई। बट आई न्यू नाउ दैट इट वॉज राइट, बट उन्हें अब ये पता था कि वो बिल्कुल सही दरवाजे पर हैं, बिकॉज शी हैज़ नोटिस द नंबर प्लेट, क्योंकि उन्होंने नंबर प्लेट को नोटिस कर लिया था। वेल अच्छा, यू न्यू माई मदर, तो मेरी मदर को जानते हो। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। हैव यू कम बैक, क्या तुम वापस आ गई हो। सेड द वुमेन, मीन्स आस्क्ड द वुमेन फ्रॉम द narrator. I thought that no one had come back. She replied that I don't think so that no one would be able to come back from that second world war. Narrator क्या कहती है, मुझे नहीं लगता कि कोई वापस आया होगा। Only me, सिर्फ मेरे अलावा सिर्फ मैं वापस आई हूँ। A door opened and closed in the passage behind her. A door opened, एक दरवाज़ा खुला and closed और बंद हो गया in the passage behind her. उनके पैसेज में, उनके बैक साइड में। A musty smell emerged. A musty मतलब गंदी सी, irritating you can say. A musty smell emerged. एक irritating सी smell आने लग गई। I regret I cannot do anything for you. I regret means she was regretting that narrator's aunt, no? She is narrator's aunt. Mrs. Darling was regretting that and she replied that she was not able to do anything for the narrator. उन्होंने क्या कहा कि वो अब कुछ नहीं कर सकती उनके लिए। I have come here specially on the train. I wanted to talk to you for a moment. What narrator replied? That I have come here specially on the train. कि मैं special ट्रेन पर आई हूँ। I wanted to talk to you for a moment. Means the narrator wanted to talk to that Mrs. Darling, but Mrs. Darling was not interested in talking to the narrator. That I have told you earlier. It is not convenient for me now. What Mrs. Darling replied, that it is not convenient for her right now, that she is not comfortable in talking to her right now. Said the woman. Woman ने कहा, I can't see you. Means I am not, what she said, I am not able to see you another time. I can't see you means she can't talk to that girl. She can't talk to narrator. Another time, फिर कभी आना, you may come any other time. She replied. She nodded and courteously closed the door. She nodded मतलब denied, उन्होंने मना कर दिया, and courteously और मतलब means carefully, she carefully closed the door that narrator would not be able to come back again in the room. As though no one inside the house should disturb. As वो चाहती थी कि उन्हें कोई भी उस घर में disturb ना करे. I stood where I was on the step. I stood. I means narrator was standing where I was on the step. वो जिस step पर खड़ी थी, वो जिस सीढ़ियों पर खड़ी थी, on the same place she kept on standing. And what Mrs. Darling did? Mrs. Darling closed the door. The curtain in front of the bay window moved. The curtain, जो curtain था in front of the bay window. What is bay window बेटा? The curtain in front of the bay window moved. जो curtain था bay window के front में बेटा moved, वो move हुआ. Someone stared at me means someone was staring at her from the window. कोई जो है narrator को window से stare कर रहा था. And or would then have asked what I wanted. और शायद means narrator thought that जैसा ऐसा लग रहा हो that person wanted to ask that why narrator is over there. वहाँ पर narrator क्यों है and what she wants.
Oh, nothing. अरे कुछ नहीं. The woman would have said it was nothing. Means there was someone in the room when Mrs. Darling closed the door. Narrator was standing outside. Mrs. Darling closed the door, and narrator find out that someone was with Mrs. Darling, and Mrs. Darling asked her. Means that person asked from Mrs. Darling that who that person was. Means अब फॉर एग्जाम्पल मिसेस डॉर्लिंग की बात चल रही है. अब अंदर कौन है? मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर. ठीक है, मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर है. अब मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर उनसे पूछती है कि मॉम हु वाज आउटसाइड, बाहर कौन था? व्हाट नरेटर रिप्लाइज, मीन्स व्हाट मिसेस डॉर्लिंग रिप्लाइज, नोबडी वाज देयर, वहां पर कोई भी नहीं था. दीज थिंग्स नरेटर फेल्ट कि उनको ऐसा लगा कि सच टाइप ऑफ थिंग्स आर बीइंग सैड इन द रूम. होप यू हैव क्लियर्ड दिस लाइन बेटा. I looked at the nameplate again. Means the narrator noticed that nameplate again. Darling it said. Darling उस पर क्या लिखा हुआ था? Darling. It black letters on white animal. Black letters में लिखा हुआ था और white animal में लिखा हुआ था. And on the jam. Jam होती है बेटा चौखट. चौखट पर at the bit a bit higher, जो कि थोड़ी सी हायर थी उस नेम प्लेट से, द नंबर, उस पर नंबर लिखा हुआ था. एंड व्हाट वाज द नंबर? नंबर 46. मीन्स ओवरऑल व्हाट वाज द एड्रेस? 46 मार्कोनी स्ट्रीट. होप यू गॉट इट. As I walked slowly back to the station, I thought about my mother. As I walked slowly back, कहती है जैसे ही मैं थोड़ी सी पीछे वापस की तरफ चलने लगी. अब जो नरेटर है, she got negative response from Mrs. Darling. उनको Mrs. Darling से क्या मिला? Negative response. तो what she did? She was returning back. वो वापस जाने लगी. I thought about my mother. Means the narrator thought about her mother. उन्होंने अपनी मदर के बारे में सोचा. Who had given me the address years ago. जिन्होंने नरेटर को ये एड्रेस दिया था बहुत साल पहले. लॉट्स ऑफ इयर्स एगो नरेटर्स मदर हैड गिवन दिस एड्रेस टू नरेटर. सो दैट्स व्हाई नरेटर वाज एबल टू कम टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस ना. अदरवाइज हाउ इट वुड बी पॉसिबल? ऑब्वियसली. सो वेयर वी वर स्टूडेंट्स. Who had given me the address years ago. जिन्होंने मुझे ये एड्रेस बहुत साल पहले दिया था. It had been in the first half of the war. Means it was the half time of the first war. जो war हुई थी, वर्ल्ड वॉर हुई थी, उसका ये हाफ टाइम था. I was home a few days. वो कहती है कि आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज. कुछ दिन के लिए जो नरेटर थी, शी स्टेड एट हर होम. वो अपने घर पर रही. एंड इन स्टक immediately that something or other about the rooms had changed. तो उनको immediately what she thought कि उनको ऐसा लगा कि something has changed the rooms. कुछ rooms के बारे में changes हैं. I missed various things. मीन उनको बहुत सारी चीज़ें थी, जो बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें थी जो नरेटर ने मिस की. My mother was surprised. I should have noticed so quickly. मेरी mother was जो है वो surprised थी that. अब here you would be confused students. Do you know why? क्योंकि यहाँ से narrator ने अपनी कर दी है past story start. It is the time to be confused, right? But no need to worry. I am always here to help you. Here narrator had started his previous story. क्या होता है बेटा? जो मिसेज एस है, what she did? She started giving the belongings to Mrs. Darling. ठीक है, जो नरेटर है वो बहुत छोटी है. अब मिसेस डॉर्लिंग को जो है उन्होंने अपने घर का धीरे धीरे करके सामान देना शुरू कर दिया. मतलब जैसे कि कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दिया, कभी कोई बोर्ड दे दिया, कभी कोई नेकलेस दे दिया, कभी कुछ दे दिया, कभी वो जो कार्डिगन था वो दे दिया. तो नरेटर ने क्या किया? अब नरेटर छोटी थी पर इतनी भी छोटी नहीं थी. शी वॉज इनफ स्मार्ट. शी स्टार्टेड नोटिसिंग दोज थिंग्स. उन्होंने वो चीज़ों को नोटिस करना शुरू कर दिया कि हमारे घर का सामान जा कहाँ रहा है. लेट्स सी व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट. आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज. मैं घर पर कुछ समय के लिए थी. एंड इट स्टक मी. और इस चीज़ ने मुझे स्टक किया इमीडिएटली उसी समय. दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज. कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो रूम्स के बारे में चेंज्ड है. आई मिस्ड वेरियस थिंग्स. मैंने बहुत सारी चीज़ों को मिस किया. मीन्स जो नरेटर है उसने जज करना स्टार्ट कर दिया कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिस हैं. माई मदर वॉज सरप्राइज. आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली. मीन्स जो नरेटर की मदर है मिसेस एस, शी वॉज सरप्राइज टू नोटिस दोज थिंग्स सो क्विकली. वो बहुत जल्दी से नरेटर ने उन चीज़ों को नोटिस कर लिया ना, तो हर मदर वॉज रियली वेरी सरप्राइज्ड. देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग. तब जो है नरेटर्स मदर टेल नरेटर अबाउट मिसेस डॉर्लिंग. मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताती हैं. आई हैड नेवर हियर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर. आई हैड नेवर हियर्ड. मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना था. ऑफ हर, उनके बारे में. बट लेकिन अपेरेंटली अगर अलग तरीके से देखा जाए तो शी वॉज
एन ओल्ड एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस मतलब जान पहचान होना, ठीक है, मतलब ऐसा लगा था कि वो मेरी मदर की थोड़ी दूर की रिश्तेदार हैं, थोड़ी सी उनसे जान पहचान है मेरी मदर की, ऑफ माई मदर, मेरी मदर की, whom she had seen for years ago, जिन्हें उन्होंने बहुत सारे साल पहले देखा था, बहुत समय पहले देखा था। She had suddenly turned up and renewed their contact. She had suddenly, अचानक से उन्होंने क्या किया, टर्न अप कर लिया, पुराने कॉन्टैक्ट को अपना फिर से नया कॉन्टैक्ट में आए वो, एंड since then she had come regularly, और तब से वो रेगुलरली आने लगी। मतलब कि जो नरेटर ये नोटिस कर रही थी कि मिसेस एस और मिसेस डॉर्लिंग एक दूसरे के टच में नहीं थे बहुत टाइम से, लेकिन सडनली जो मिसेस डॉर्लिंग है उन्होंने मिसेस एस से कॉन्टैक्ट किया और फिर उसके बाद वो रेगुलरली उनके कॉन्टैक्ट में आने लग गई। एवरी टाइम शी लीव्स हर here she takes something with her, every time, मतलब now what narrator is saying, then whenever Mrs. Darling comes to their house, जब भी Mrs. Darling उनके घर पर आती तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ सामान लेकर जाती। एवरी टाइम, जिस समय भी she leaves here, वो वहाँ से जाती, she takes something home with her, वो कुछ ना कुछ अपने घर अपने साथ लेकर ज़रूर जाती। said my mother, मेरी मदर कहते हैं। she took all the table silver in one go, उन्होंने क्या किया, सारी जो सिल्वर की टेबल्स थी ना वो एक ही बार में अपने घर लेकर चली गई। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, और जो एंटीक प्लेट्स थी, जो वहाँ पर एंटीक प्लेट्स हंग देयर मतलब जो वहाँ पर लटकी हुई थी, वो भी एक बारी में एंटीक प्लेट्स अपने साथ लेकर चली गई। शी हैड trouble lugging those large vases and I am worried she got a crick in her bag from the crockery. She had trouble means, अब जो नरेटर है वो बता रही है कि जो मिसेस डॉर्लिंग हैं उनको सामान को लेकर जाने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी, बट शी वॉज सो ग्रीडी दैट शी नेवर फेस दोज प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पर नरेटर बेटा कहते हैं शी हैड ट्रबल लगिंग मतलब इधर उधर से सामान लेकर जाना, वो सामान लेकर जा रही थी, दो लार्ज वेसेस, बड़े बड़े लार्ज वेसेस लेकर जा रही थी। एंड आई एम वरीड, और मैं वरीड थी। शी गॉट ए क्रिक मतलब अकड़न आना, ठीक है, मतलब जैसे कमर में हमें झटका लग जाता ना, दैट इज कॉल्ड क्रिक। तो उनके बैक में क्रिक जरूर आई होगी फ्रॉम द क्रॉकरी, उस क्रॉकरी की वजह से, बिकॉज दैट क्रॉकरी वॉज सो हैवी। शी इवन इंसिस्टेड, नो माई मदर शूक हर हेड पिटिंगली, और जो मेरी मदर थी उन्होंने अपना हेड शूक किया, पिटिंगली दयनीय मतलब बहुत से दया आती है ना हमें, जैसे किसी पर्सन पर, दैट ने भी शूक हर हेड, तो उसकी मदर ने उनका हेड शूक किया। आई वुड नेवर